टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। इंटरेस्ट होगा क्या हुआ आगे ये जानने में, कि तुम्हें पता है क्या हुआ, मेरी लाइफ में इतनी बड़ी भसड़ हो गई, ये पहली क्या भसड़ हुई, बाहर जाने के लिए पैसे नहीं है। हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन्फ्लुएंसिंग, एक्टिंग, ड्रामेटिक्स, इन सब चीज़ों में मेन होती है विच इज़ नन अदर दैन द क्रिएटिविटी इट्सेल्फ। क्या आपको लगता है कि आप क्रिएटिव है? क्या आपको लगता है कि यू आर क्रिएटिव इनफ? क्या आपको लगता है कि आपको पता है क्रिएटिविटी क्या है? और आजकल जिस फॉर्म ऑफ कंटेंट को मैं कंज्यूम कर रही हूँ वो है पॉडकास्ट। आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम वेरियस प्लेटफॉर्म्स ऑन द इंटरनेट आउट देयर, जिसमें से यूट्यूब हैज़ अ मेजर रोल टू प्ले। यूट्यूब literally has tutorial videos and everything, right? But पॉडकास्टिंग का जो एक पर्टिकुलर जॉनर है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है। जो ये कलयुग है, इन दोज एग्जैक्ट वर्ड्स दैट आई हैव हर्ड इट, कि कलयुग में सबके पास पूरी तरह से ज्ञान है। 100% एवरीबडी इज़ ऑक्यूपाइड विद ज्ञान। तो आपका ज्ञान किसी को सुनना नहीं है, विच इज़ वेरी वेरी ट्रू। आपने मुझे बताया फन फैक्ट कि आज के कलयुग में सबके पास ज्ञान है, nobody wants to know anything. I will stay put and I will listen to you. Back in my head I'm like, I knew this already. You didn't tell me anything that I did not know of. अगर आपने किसी को बोला है कि oh there is one this thing, तो सामने से आपको और 4 चीज़ें, आपको पता है कलयुग 5000 साल का, 5 लाख साल का है, और इसमें से अभी कितने मतलब द एग्जैक्ट नंबर्स दिल कोट की ये अभी तो बस एक डॉट के जितना है। अभी जब ये पूरा एक इंसान बन जाएगा कलयुग, तब देखना कितने प्रकार की प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नोबडी वॉन्ट्स टू लिसन टू यू, बट listening actually is very soothing. When you are doing some work, when you are doing anything at all, if you are not able to concentrate, if you are not able to put your mind into particular one thing, suppose आपका job mundane है and you do not have to think a lot in your job, you should listen to something while working so that you can concentrate. No, if you have to always be on your toes and keep on thinking, then that is very difficult. Now, क्योंकि creativity की definition बहुत अलग है बहुत अलग अलग लोगों के लिए। किसी के लिए creativity एक art form है, किसी के लिए creativity is being smart, कि आपने for example अगर आपके पास कोई सामान नहीं है, suppose एक बर्थडे केक आता है एंड उस पर हैप्पी बर्थडे का बैनर नहीं है एंड देर इज़ नो बैनर अवेलेबल, अ पर्सन हु जस्ट मेक्स अ बैनर आउट ऑफ अ स्टिकी नोट एंड स्टिक्स इट ऑन टू द केक विद maybe anything, maybe a toothpick, so that person is called creative for some people. For other people that person might be just smart. What kind of creativity do we need in content creation? What level of creativity are we as A, young people, B, as consumers want to consume? The creativity that is in the movies, which is the art of something, which is some art form, I would call anybody creative. That would be because of how beautifully you are presenting anything and everything, right? Whether it is a word or a poem, or whether it is a song or anything. People who write songs are creative, people who write poetries are creative. And that is also a very interesting thing, that nowadays there are a lot of people on stand-up stages or some sort of stages like telling their poetries, but I don't know if it is just me, but I do not find those poetries as poetic or as relatable, because गुलजार साहब की पोइट्री relatable लगती थी मुझे. For that matter, when Zakir Khan also puts some thought into poetry, I relate. Creativity or passion
जब मैं स्कूल में थी तो ऐसा था कि मुझे ऐसे लगता था कि क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो आपके पैशन में होनी चाहिए. आपकी डेली लाइफ में येस यू हैव टू बी क्रिएटिव इन द सेंस ऑफ स्मार्टनेस, दैट इफ़ यू लैक समथिंग with your creativity or your smartness, so to say, you have to be good at it, or you have to hide it in a way that nobody notices it. And that is what like being street smart is, and that is the right term of it. But now that I've grown up and I see a lot of my colleagues and my batchmates have taken up with their passions as their careers, I have huge respect for them. But I also believe that 99% of us cannot do that. Because making your career out of your passion requires a lot of guts. And by that I also mean a lot of financial backing. Because initially, like from the exterior it seems very simple, but initially there is no money, there is a lot of effort, there is a lot of input from your side. If you are not making content that is some sort of, आजकल जो हम रील्स देखते हैं कि ये देखो ये क्रिएटर इतना छोटा था, इसके पास कोई डिवाइस नहीं थी, जिसने इसके पास कोई भी स्ट्रक्चर नहीं था बनाने का, दे वर जस्ट प्योरली मेकिंग ऑनेस्ट ग्रेट कंटेंट. लेट मी टेल यू, उन क्रिएटर्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा कम है. और उन क्रिएटर्स की जिन्होंने टिकटॉक या डब स्मैशर्स के साथ अपना काम किया है, द पीपल हु आर रियली टैलेंटेड आर स्टिल स्ट्रगलिंग. And other people, for obvious reasons, are popular. I do not absolutely respect everybody and do not feel कि किसी का effort कम था. Having conversation is really important, and listening, so to say, is more important. I have a billion things to say, but I am very much calmed down by listening to a conversation between two people. तो अगर आप मेरी तरह एक कंटेंट क्रिएटर हैं जिसे लगता है कि आपके पास कोई बात है कहने को, सो जस्ट रिकॉर्ड और मेक अ पॉडकास्ट आउट ऑफ इट और हैव अ कॉन्वर्सेशन विद योर बेस्ट फ्रेंड एंड पोस्ट इट. बिकॉज जब आप दो लोग होते हो तो आपको ज़रूर खुद से बोलने का, खुद का ज्ञान बताने का, खुद का, आई डोंट नो व्हाट नैग देयर इज़ इन दिस वर्ल्ड ऑफ टेलिंग एवरीथिंग और talking about everything. But honestly, there is a lot of calm and peace in listening. If you are just listening, people, when they start a conversation, you have some doubts, and by the end of it, if it is a meaningful conversation, or if you listen for quite some time, you will find your own answers. And this is amazing. बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने जया किशोरी जी के भी एक पॉडकास्ट से ही सुनी थी, और बहुत सारी चीज़ें मैं अभी जो बोल रही हूँ वो उनके पॉडकास्ट से आती हैं. बहुत सारी चीज़ें इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्स दैट शी कोटेड, शी रेफर्ड टू, कि बहुत ही उन्होंने एक आइडिया बताया कि क्या जो महाभारत की कहानी थी, कलयुग केवल नाम अघारा is what she was trying to explain while she told this. कलयुग केवल नाम अघारा का मतलब है कि जब बहुत ज़्यादा बुरा कर्मा, बहुत ज़्यादा बैड इंटेंशंस फैल जाएंगे इस दुनिया में, तो सिर्फ भगवान का नाम जप ही आपके लिए काफ़ी होगा टू गेट बैक ऑन ट्रैक. महाभारत लिखी जा रही थी तो द राइटर वॉज वेरी मच एस्टोनिश्ड कि यार मुझे सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं मिल रहा है. तो जब उन्होंने भगवान जी लोगों से कॉन्वर्सेशन की कि ऐसा क्यों है, तो उन्हें पता चला बाय द गॉड हिमसेल्फ कि युग में कोई किसी का ज्ञान सुनना ही नहीं चाहता है. तो अगर तुम इसको ज्ञान की तरह, श्लोकों की तरह बताओगे तो कोई सुनने के लिए होगा ही नहीं. एक काम करो, इसको एक कहानी की तरह बताओ. अगर ये कहानी होगी तो सब सुनेंगे,
क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट होगा क्या हुआ आगे ये जानने में। और फिर शीर्षक की तरह उन्हें श्लोकों का मीनिंग समझा दो कि देखो, अर्जुन ने ऐसे किया तो उसके साथ ऐसा हुआ, दुर्योधन ने ऐसा किया तो उसके साथ ऐसा हुआ। सबके साथ कुछ भी क्यों हुआ वो आप एक मॉरल की तरह समझ रहे हैं। दिस इज़ वेरी ट्रू। आज अगर मैं बैठी हूँ, आई नो फॉर अ फैक्ट दैट lot of people will not be interested in listening to my gyan. But yes, if I am telling you a story, if I am telling you a gossip कि तुम्हें पता है क्या हुआ, मेरी लाइफ में इतनी बड़ी भसड़ हो गई, there's no point listening to it, but I am all ears. Please tell me क्या भसड़ हुई। ये सब के बीच का जो लाइफ पार्ट है उसमें हम बहुत सारी चीज़ें मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। जिन लोगों ने ये चीज़ को समझा है, इन नॉट, जैसे मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ तो मैंने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से समझा है, या मुझे लगता है कि मुझे इस चीज़ से ये पता चला है, बट बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ क्रैक कर ली है। वो आपको कहानियाँ सुना रहे हैं और आप सुन रहे हैं, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। पहले डेली व्लॉग्स चलने लगे थे कि हाय गाइस मैंने अपने पूरे दिन में ये किया, और लोग उनको क्यों देख रहे थे, आई हैव एनालाइज्ड इट, क्योंकि वो खुद लाइफ में ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, वो बस अपना फ़ोन चला रहे थे कभी। और ये आपकी गलती नहीं है कि आप फ़ोन चला रहे हैं, आपके पास पैसे ही नहीं है इतना कुछ करने के लिए, बाहर जाने के लिए पैसे नहीं है। दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ नॉट इवन लोअर क्लास लाइफ, दिस इज़ मिडिल क्लास लाइफ ब्रो। इफ़ यू आर अर्निंग 30,000 एंड चले जाते हैं पैसे, इन टुडेज़ वर्ल्ड मनी हैज़ नो वैल्यू। जितना ज़्यादा लोग प्रॉफिट कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा पीछे भी जा चुके हैं। कोविड की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे लोगों की पूरे फैमिलीज़ डिसोरिएंट हो गए हैं, क्योंकि जो एक बंदा था उनकी फैमिली में कमाने वाला वो चला गया है, एंड सबकी सरकारी नौकरी नहीं होती। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप अगर अकेले बैठे हुए हो और आप दूसरों का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, उसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपको आता नहीं है या आप खुद नहीं कर सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा मतलब ये भी होता है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। वो कैसे आएंगे, या वो कैसे क्रिएटिव कॉन्टेक्स्ट में शिफ्ट किया जा सकता है। हाँ, क्वालिटी ऑफ कंटेंट मैटर करता है, मेरे लिए मैटर करता है। कोई भी इंसान अपना फ़ोन देखकर अपनी लाइफ से थोड़ा दूर हटना चाहता है कि थोड़ा कुछ अलग एक्सपीरियंस करें। पहले ये चीज़ें मूवीज़ से होती थी कि लाइफ में तो कुछ नहीं अच्छा चल रहा है, मूवी देख के आते हैं। मूवी में हीरो के साथ जो हो रहा होता है, लगता है कि हाँ एक दिन मेरे साथ होगा, एक दिन मेरा टाइम आएगा। फिर हम बड़े हो रहे हैं और बड़े हो रहे हैं और बड़े हो रहे हैं, और टाइम आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। मैं ये नहीं कहती कि सारा कुछ हालात का है, हमने खुद भी अकेले रहने का, हमने खुद भी ये कोशिश करी नहीं है, शायद उतने एफ़र्ट्स मारे नहीं हैं, या फिर एफ़र्ट्स मारने के बावजूद हमारा समय अभी आया नहीं है, क्योंकि अगेन प्रारब्ध भी कोई चीज़ होती है। लेकिन इस दुखी जीवन को कैसे बिताया जाए, तो इसीलिए भगवान ने हमें क्रिएटिविटी और प्यार, दो ऐसी चीज़ें दी हैं जिनसे नो मैटर हाउ मच मनी यू हैव, नो मैटर व्हाट फाइनेंशियल स्टेटस यू अज्यूम, नो मैटर हाउ मच फॉलोअर्स यू हैव, अगर आपके पास क्रिएटिविटी और प्यार है तो आप बहुत अच्छे से अपना एक सेकंड जब आप कॉन्शियसली वो डिसीजन लेना चाहें तो उसे बदल सकते हैं, और उसी से आप अपना कंटेंट या अपनी लाइफ या अपना करियर भी स्ट्रक्चर कर सकते हैं। एंड बाय प्यार आई डू नॉट जस्ट मीन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या पति पत्नी वाला प्यार, आई मीन द लव दैट यू हैव फॉर योर मदर। अभी भी कोई ना कोई आप में से अपनी मॉम के बर्थडे के लिए सेव कर रहा होगा, जिसकी वजह से उसके पास कुछ बाहर कॉफ़ी डेट पे जाने के लिए पैसे नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें घर पे पैसे भेजने पड़ते हैं, इसलिए बाकी के मंथ आप कुछ नहीं कर पाते। ये आप प्यार से ही करते।
सब लोग मना कर सकते हैं और 90% लोग मना भी करते हैं, पर जो लोग अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं और रिस्पेक्ट से ज़्यादा उनसे प्यार करते हैं, वो अपनी फैमिलीज़ और अपने साथ वालों के लिए सोचते हैं। और हम सबके अंदर एक पैशन की तरह होती है। हम में से बहुत कम लोग होते हैं जो ये बोलते भी हैं कि मेरा कोई पैशन नहीं है, मेरा पैशन बस सोना है। बस दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू शो द वर्ल्ड। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम अपने पेरेंट्स को अपना पैशन बता देते हैं और फिर वो कहते हैं ओ आंटी आई हैं दिखाओ। तो ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट राइट। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटिविटी की डेफिनेशन मेरे लिए ये है कि आपको जो अच्छा लगता है, अगर आपको अपने आप से बातें करना अच्छा लगता है तो करिए, आपको ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है तो करिए, अगर आपको मीनिंगफुल पोएम्स लिखना अच्छा लगता है तो लिखिए। हर दिन लिखना पड़ेगा, जॉब के साथ लिखना पड़ेगा, पढ़ाई के साथ लिखना पड़ेगा। इस कॉन्वर्सेशन में मुझे लगता है कि अभी एंड कर देना चाहिए। बट येस, दिस इज़ अ स्टार्ट। आई थिंक जितना ज़्यादा मुझे सुनना पसंद है उतना ही ज़्यादा मुझे मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने में। नाउ यू नीड टू मूव ऑन, you need to move on from all those excuses, you need to move on from all those exaggerations of how you cannot start, because conversation is very easy. अगर आप अपने फ़ोन में एक ईयरफोन लगाकर उसको बहुत पास रखकर बातें करना शुरू करेंगे तो बातें हो जाएंगी। आपकी बातें इस तरह किसी ने सुनी भी हैं, आई एम श्योर दुनिया भी सुन लेगी। पर उससे पहले हमें लगता है कि सुनना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए नहीं क्योंकि मैं खुद बातें कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि सुनने से बहुत सारा रिवीजन हो जाता है। ज्ञान तो एनी विच वे सबके पास बहुत सारा है, आई नो, पर सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे अराउंड जो लोग भगवान ने भेजे हैं वो हमें तभी वो सारी चीज़ें बोलते हैं जब भगवान चाहते हैं कि हम सुने। अगर आपको में लग रहा है कि मैं रैंडमली ज्ञान दे रही हूँ, मे बी मैं अपने कमरे में ऐसे रैंडमली ही ज्ञान दे रही हूँ, पर आप तक ये ज्ञान पहुँच इसलिए रहा है क्योंकि नाउ इज़ द टाइम फॉर यू। गॉड वॉन्ट्स कि आप सुनो और शुरू करो अपनी क्रिएटिव जर्नी को, चाहे वो कुछ भी हो। पर उससे पहले आई वॉन्ट टू प्रमोट ऑल दोज लिसनिंग थिंग्स। जो लोग यूट्यूब पे कविताएं सुना रहे हैं उनकी कविताएं सुनो, जो लोग कहानियाँ सुना रहे हैं उनकी कहानियाँ सुनो, जो लोग किस्से सुना रहे हैं उनके किस्से सुनो, जो कथा सुना रहे हैं उनकी कथाएं सुनो। आई नो यू आर टू स्मार्ट फॉर ऑल ऑफ दिस, पर बातें सुनने से नई बातें करने के टॉपिक्स भी मिल जाते हैं और वो बहुत अच्छा होता है। जब पूरे दिन के थके हुए आप और आपके पास कुछ बात नहीं है करने को, तो किसी ऐसी बारे में बात कर लो। यही बात कर लो कि आज एक नया वीडियो देखा या एक नई कहानी सुनी और उस कहानी से तुम्हें जो तुम्हारी ज़िंदगी का किस्सा याद आया वो अपने साथ बैठे मम्मी पापा और भाई बहनों को बता दो। पर सुनना छोड़ो मत। आई नो कि शायद मैं किसी कॉज के लिए काम नहीं कर रही हूँ, शायद जो चीज़ मैं समझ रही हूँ वो मैं ठीक से समझा ना पा रही हूँ, पर मुझे पता है कि जो सुन रहे हैं उनको पूरी तरह से कनेक्शन तो बन रहा है कि हाँ बात तो सही बोली गई है और क्रिएटिविटी भी है हमारे अंदर, बस कुंडी खटखटा रही है, हम दरवाज़ा खोलने में आलस दिखा रहे हैं। तो उस आलस को छोड़िए और मूव ऑन करिए अपने आलस से, मूव ऑन करिए अपने एक्सक्यूज़ेस से। जो एक्सक्यूज़ेस रेलिवेंट है, आई बिलीव यू बॉयज़ एंड गर्ल्स, आई बिलीव यू, बट प्लीज़ चॉप now.